Should I start? Uh, Acha, my patient, Mrs. Alina, wife of Mr. Ahmed, 26 years of age, married for 4 years. It is non-consensuous marriage. Resident of Bitayabad, housewife by profession, formal education up to metric. She has no any previous illness. She is gravida 4 para 2 with one miscarriage. Previous both cesarean section, which are alive, and last birth was 1 year back. She has last menstrual period on 1st of August 2021 with regular cycle, which makes her expected date of delivery on 8th of May 2022. Presented in emergency department on 2nd of March 2022 at 30 weeks of gestation amenorrhea with complaint of shortness of breath for 2 days. According to my patient, she conceived spontaneously. This was her unplanned pregnancy, and she confirmed this pregnancy by urine pregnancy test done by herself when she was overdue. But after 2 weeks, she went to nearby hospital and ultrasound was done, and it was told to her that this is 6 weeks alive pregnancy. My patient experienced nausea, vomiting initially, but it was subsided by itself, and she does not need any medication at that time. Patient started taking folic acid after confirmation of the pregnancy. She has no any history of flu fever rashes, no any history of pervagina bleeding, leaking or discharge, and no any hospitalization in the first trimester. She booked herself at tertiary care hospital. BP was checked. Initially, it was normal. All baseline investigation blood test was done initially, and it were all normal according to my patient. No history of easy fatigability or lethargy in first trimester or loss of appetite. Regarding my patient, she felt fetal movement in 5th month of the pregnancy. An anomaly scan was done in 20 weeks, and it was normal according to my patient. BP was checked and it was normal. Her oral glucose tolerant test was performed, and it was also normal. One dose of tetanus toxoid injection was also given. According to my patient, she prescribed some medication like iron calcium, which was taken by her regularly on time. She has regular follow-up, but her last follow-up was 2 months back at her booked hospital. But my patient was satisfied with her fetal movement, and according to her abdominal growth is normal. But for 1 week, she had complaint of easy fatigability and lethargy and poor performance or doing household activities and on and off palpitation for 2 days. She has shortness of breath, which was noted while she was climbing 2 flights of stairs and walking up to the washroom. However, no any complaint of bluish discoloration of the lips or fingers, no any shortness of breath on lying down, no any complaint of chest pain or pain radiating to the left arm, no leg pains, leg swelling, or decreased urine output. On further inquiring, patient said that she eats only vegetables in her diet, no any meat or fruit intake, and on and off only chicken takes, which was only once in a month. Also, she has history of pica in the form of raw rice, or in the pregnancy, she continued eating daily, half bowl of rice daily. She has no any history of worm infestation, and she used boiled water and washed vegetables before use. No any history of walking barefooted. Patient has also not reporting any history of vomiting, diarrhea, any gastric ulcer, or any rectal bleeding or perianal itching. She has no any complaint of bleeding in the urine or bleeding in the sputum. No history of any bleeding disorder or easy bruisability or petechiae, and also no any history of yellowish discoloration of skin and eye. No any history of malaria, TB, any chronic cough or asthma, or any recurrent UTI. Now patient admitted with complaint of shortness of breath. Regarding her past obstetric history, she is gravida 4 para 2 with one miscarriage, all conceived spontaneously. She is previous to scar. First child was 3 years back. It was female. And cesarean section was done due to non-progress of the labor at tertiary care hospital. Second child is 1-year-old male baby. Cesarean section was done due to short inter-delivery interval. Both babies are alive, healthy, having good weight and a good Apgar at the time of the delivery, breastfeeded and vaccinated. No any history of antepartum hemorrhage, intrapartum hemorrhage, and postpartum hemorrhage in both deliveries. She has a history of one miscarriage at 3rd month of the pregnancy. It was a live pregnancy.
pregnancy initially, but PV bleeding started and followed by inevitable miscarriage, and MVA was done. However, no product of conception was sent for histopathology. Regarding her gynae history, age of menarche was 15 years. Cycles were regular. She bleed 5 days and 20 days of the cycle, but flow was heavy, and she used 3 pads per day. It was fully soaked. No history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual bleeding, postpartum bleeding. Couple used barrier method for contraception. No history of pap smear taken in the past. Regarding her medical history, it was insignificant with no any chronic disease like diabetes, hypertension, jaundice, thalassemia, and bleeding disorder or cardiac, kidney, or joint pain. Regarding her family history, no any history of thalassemia or recurrent blood transfusion history in her family, no any family history of anomalous baby. Regarding her past surgical history, she's previous to scar with 1 MV was done. And in her personal history, her sleep and appetite was normal with normal bowel and bladder habits. No any addiction of coffee, tea, and betel nut was there. Blood transfusion allergic history was non-significant. And regarding her socioeconomic history, she is belonging to lower socioeconomic group, and basic needs of life met with difficulty. On examination, young female with thin build, sitting comfortably on couch, well-oriented and cooperative, having weight 50 kg and height 152 centimeter, with makes her body mass index of 21 kilogram per meter square. On vital examination, her pulse was 102 beats per minute. It was regular rhythm, but high volume. However, bilateral synchronous without radiofemoral delay. Her BP was 100/60 millimeter of mercury. Temperature was 98 degree Fahrenheit, and respiratory rate was 20 breaths per minute. Her Palarnis was positive on oral mucosa, conjunctiva, skin. However, there was no icterus or clubbing, cyanosis, and coelonychia. Oral hygiene was also normal. No any stomatitis or glossitis was noted. JVP was not raised, and there was no any edema. Lymph node was not palpable. Thyroid was not enlarged. On breast examination, bilateral breast was normal and symmetrical with normal nipple formation, soft and non-tender. No any mass palpable in all 4 quadrants of the breast. Regarding her respiratory examination, normal vesicular breathing was auscultated in all 3 lung zones with no any added sound. Regarding her cardiovascular examination, the first and second heart sound was audible in all 4 precordial areas, and with no any added sound, and apex beat was palpable at 5th intercostal spaces and mid-axillary line. On per abdomen examination, on inspection, abdomen protruded due to gravid uterus, umbilical centrally placed, and everted, stria gravidarum present, no linear ligra, or any visible position was noted. A scar keloid is present at 2 centimeter above pubic symphysis. So previous surgery. Honey orifices were intact on cuff. On palpation, abdomen soft, non-tender, height of fundus was 30 weeks, and symphysis fundal height was 29 centimeter. Lie was longitudinal with cephalic presentation, and liquor was adequate, and with estimated fetal weight of around 1.5 kg plus minus 500 grams, and back was swelled on the left side with fetal heart sound was positive around 146 beats per minute on auscultation. However, no visceromegaly was appreciated at that gestational age. Done, sir. अच्छा, इसको summarize करो पहले आप. My patient, 26 years of age, gravida 4 para 2, with 1 miscarriage, previous to scar, last born was 1 year back, present in 30 weeks gestation age with shortness of breath. On examination, Pilarnis was positive, and JVP was not raised, and on per abdominal examination, symphysis fundal height was corresponding to gestational age. Okay. अच्छा बेटा, बात ये है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हुआ है चेंज. जी सर. अगर वहां पे अगर आपको कोई हिस्ट्री लेनी पड़ेगी बैठ के, बेसिकली जो आप समरी में बताते हो उससे रिलेटेड या उसी से काम करके लोगे, क्योंकि वहां पे वो पेशेंट तो बैठाएंगे नहीं. वहां पे जो बंदा बैठा होगा वो स्ट्रक्चर्ड, उसके पास पेपर होगा जिसपे उसमें लिखे होंगे कि जी आपको सिम्टम्स क्या हैं. जैसे अगर आप जाओगे तो मे बी वो सीधा सीधा कह सकता है कि जी कि मैं हॉस्पिटल, आप पूछोगे कि जी क्यों आप आए हो, तो मे बी शी कैन से कि जी आई एम 26 years of age and I came here at 30 weeks of pregnancy with shortness of breath. And then you need to kind of उसको फोकस करके ही आपने लिखे जाना. फिर वो उसमें बेसिकली वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो ये, ताकि उसी अकॉर्डिंगली जब आप उससे हिस्ट्री ले लोगे फिर आगे उसकी जो भी उसमें आगे अपने उस टाइम पीरियड में करना है. क्योंकि आई थिंक
जो आपके पास एक स्टेशन पे टाइम होगा वो होगा 12 मिनट्स है। आई थिंक इट्स 12 मिनट्स फॉर 14 स्टेशंस जिसपे आपने यू नीड टू काइंड ऑफ मूव ऑन। उसमें सारा चेंजिंग ओवर सारा कुछ टाइम मिलाने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक उनका जो प्रपोजल आया है वह इस चीज के लिए जो उन्होंने करनी है, तो उस 12 मिनट के अंदर हमने किस तरह अपने आप को कंसाइज करके वी नीड टू रूश टू दैट पॉइंट, क्योंकि एवरीथिंग वुड बी नाउ द क्वेश्चन प्रॉब्ली वुड बी टेक फोकस्ड हिस्ट्री। जैसे इसी में अगर हम आ जाएं और पेशेंट आके कहती है कि जी के लेट्स सपोज, जिसने मैंने कहा कि जी आपको सिनारियो मिल गया, या पेशेंट ने कहा हाँ जी आप क्यों आए, कि हम 26 years of age, graviда 4 para 2 plus 1 presents with shortness of breath at 30 weeks. अब उससे आगे आप क्या क्या पूछोगे? We'll do that, then we'll go for the questions. I'm coming back to you. Sir, first of all, I will ask about the symptoms, that she has a shortness of breath. So for how long she has a shortness of breath? And when she has a shortness of breath, it was sudden in onset or gradual in onset? She has shortness of breath while थोड़ा स्लो during... चले, थोड़ा स्लो चलें ताकि हम... सर मैं यही अब पूछेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं, किसको है आप तो... बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो। मैं आप बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट, लेकिन थोड़ा सा वी हैव टू टेक इट स्लोली। मैं अब यस इसमें सर, ये चाह रहा हूँ कि आप पूछी जो उसका जवाब मैं देता जाऊंगा साथ साथ। ओके सर। सबसे पहले आपको यू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर हाउ लॉन्ग? It's been about 3 months. 3 months? Hmm. It was sudden in onset or gradual increasing? It was a gradually increase कर रही, लेकिन start 3 महीने से पहले हुई। अच्छा, gradual increase. When it was increasing, while doing some household activities or while during climbing to stairs? Now I cannot climb more than 2 stairs at the moment. Or you have experienced shortness of breath even while sitting? No, not on sitting. Not on sitting. Or you can While walk up to the walking, washroom? yes, You stage can पे walk चला। up to the washroom? Sorry? You can walk up to the washroom or you have same complaint? I'm shortness of breath होती है मुझे जब when I'm about 10 to 15 steps में लेता हूँ। 10 to 15 steps. Acha, can you tell me, is there any bluish coloration of lips or fingers? Any bluish discoloration of? Not that I've noticed. Not noted. Acha. Do you feel any poor performance at work? Household अब मुझे थोड़ा सा काम करने में difficulty होगी। काम में कम, lack of energy? Lack of energy, yes. अच्छा, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, palpitation? Yes, I can feel my heartbeat sometimes. अच्छा, आप ओरल अल्सर वगैरह तो नहीं है आपको? Sorry? ओरल अल्सर No. वगैरह तो नहीं है आपको? No. खाने पीने में कमी महसूस हुई है कि आपका दिल नहीं करता खाने पीने का, डिक्रीज एपेटाइट? खाने मेरी डाइट वैसी है जैसे पहले से। जैसे पहली थी। अच्छा, डाइट में आप क्या क्या लेते हैं? सब्जियां लेते प्रोटीन हैं, के गोश्त लेते? गोश्त सॉरी, कम लेते हैं, सब्जियां ले लेते हैं ज्यादा। सब्जियां फ्रूट वगैरह लेते हैं? कम। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई छालिया सुपारी वगैरह तो नहीं लेते हैं? नो। नो। अच्छा, आयरन कैल्शियम बाकायदगी से लेते हैं आप? नो। अच्छा, नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, सब हरी सब्जियां बस आप लेते हैं ना? कहीं से खून तो ज्यादा नहीं आता नाक से या कहीं से? नहीं। कहीं से कट लगने से ज्यादा जल्दी खून बह जाता हो? कट लगा नहीं। कब नहीं लगा? कहीं धब्बे पड़ जाते हो नीले से? नहीं, नोटिस नहीं किया। ऐसे नहीं डाल देता। अच्छा, बाथरूम वाली जगह से कहीं कभी खून आया हो, कभी बवासीर का मसला हो, नो। उस जगह कभी खुजली हुई हो, नहीं। पेट से कभी कीड़े निकले हो, नहीं, अभी तक नोटिस कभी नहीं किया। आपको जिंदगी में कभी मलेरिया हो, कोई टीबी हुई हो? बचपन का पता नहीं, आजकल नहीं। टीबी, मलेरिया। अच्छा, कोई पेशाब का इन्फेक्शन या कोई बुखार वगैरह? नहीं। भी नहीं है। अच्छा, पिछले हमल में ऐसा कोई मसला हुआ था आपको? नहीं, पिछले हमल में नहीं हुआ था किसी को। पिछले हमल में कोई आयरन का टीका वगैरह लगा हो? नहीं, मुझे याद नहीं। या कोई टीका नहीं लगा? अच्छा, पिछले हमल में कभी खून ज्यादा जाया गया हो बच्चों के दौरान?
जो लास्ट वाला था उसमें हुआ था। उसमें खून ज्यादा जाया गया था कब? हाँ, हमल के दौरान या हमल के बाद? और एक बोतल भी लगी थी। एक बोतल भी लगी थी। हमल के दौरान या हमल के बाद? हमल के बाद, डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद। अच्छा, ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में तो नहीं रहे थे आप? नहीं, माहवारी कम आते हैं, ज्यादा आते हैं? वो ठीक आती। वो ठीक आते हैं, नॉर्मल आते हैं। अच्छा, कभी कोई काफी अरसे से कोई दवा तो इस्तेमाल नहीं करे, जैसे दर्द की कोई दवा, टीबी की कोई दवा, या कोई ऐसी आपको कोई नो। खानदान में किसी को है थैलेसीमिया का मसला, या किसी को बार बार खून लगता हो? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको दिल का कोई भी कोई मसला हुआ हो? नहीं। पैर सूज जाओ कभी आपके? नहीं। कच्चे चावल, कच्ची मिट्टी कुछ खाई हो आपने? चावल खाते हैं, अच्छा। कच्चे चावल? हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सब्जियां धोकर इस्तेमाल करते हैं, पानी बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं? हम्म, हाँ जी। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कभी पीलिया वगैरह हुआ हो? कोई काला यरकान या पीलिया? नो। अच्छा, डन सर। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट डन। तो नाउ वी रिमेन फोकस्ड ऑन द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। उसी में हमने रहा। अब इसी से आगे लेट्स सपोज के हम आप आ जाते हैं कि आप इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, वो भी शॉर्ट होगी, और उसके बाद क्या होगी, हाउ विल वी नाउ manage this patient? First of all, I will counsel patient regarding diagnosis that according to history examination investigation, she is diagnosed as a case of, for example, I'm considered after these investigation, she's diagnosed as a case of iron deficiency anemia, and it could be corrected. Otherwise, she may lead up to the maternal fetal complication, and under which she in maternal complication she might have poor weight gain, decreased immune response, and preterm labor pains, and in fetal complication she might have intrauterine growth restriction, poor agar of the fetus at the time of the delivery, and lower stores in the baby. Since my patient is a multigravida with previous to scar at 30 weeks of the gestation with shortness of breath, so I will admit this patient because she's symptomatic and arrange blood for her in the form of axial volume and transfuse her blood till her till she become asymptomatic. With this, I will also deworm my patient with the tablet Vermox, 100 milligram twice a day for 3 days, and I also continue her iron calcium with folic acid supplement. Once patient becomes asymptomatic, I will discharge her to home and keep her in follow-up visit with dietary advices, and iron calcium supplementation will be continued. And each visit, I will ask my patient regarding improvement of the symptoms and will repeat her hemoglobin. And I also discuss with mode of delivery, which will be discussed with the patient as she is previous to cesarean section. So elected date will be given at 38 weeks of the gestation, and also contraception was also discussed during follow-up visits. And so for this, I will keep her continue her pregnancy till 38 weeks, and then I will give her elective date. And I admit her one day before the cesarean section and repeat her hemoglobin and keep her blood product in hand for cesarean section. And for this, I will also prepare for the patient, do her pre-op preparation, take concern for the cesarean section, keep her NPO for 6 to 8 hours before the procedure, and then move patient to the OT, catheterize her, give her antibiotic before skin incision, and pediatrician should be available at the time of the delivery. And I will manage her the stage of the labor at the time of the delivery and give her syntocinon. And after the procedure, I keep patient in recovery room and watch for PPH. And after that, I will already allowed once her guts out was audible, and remove catheter on the next day, and I advise her early mobilization and IV hydration and oral intake. चलो Done, गुड। sir. और कुछ और करोगे पेशेंट के साथ? एक चीज से तो सर, मिस हो गया। कॉन्ट्रासेप्शन मैंने वो पूछ लिया था उसके फॉलो अप विजिट पे. She is previous to scar with short ended delivery interval with 1 miscarriage. सो फिर उसने क्या कहा? सर नहीं दी परमिशन, इसलिए सिर्फ सिजेरियन कर दिया. नहीं, अगर उसने परमिशन किस चीज की मांग रहा था? For example, we were during cesarean we can place intrauterine contraceptive device, so she was refused at that time, and she told me that after the delivery she will go for the any other method like OCPs or injectable.
तो आपने वो भी तो एडवाइस नहीं किया बिफोर यू लेटर को। हाँ लेटर को। और क्या डू वी गिव ओसीपीज पोस्ट सेक्शन फॉरन दे देते हैं? No sir, after 6 weeks we have to give. तो उससे पहले क्या करोगे आप? We can give him an injection report form IM. Yes. कोई आप इंजेक्टेबल लगा के, ये ना हो कि नेक्स्ट 6 वीक्स में वो दोबारा Yes sir. प्रेग्नेंट होके ना आ जाए। Yes sir, I am before discharging her. हाँ, बिफोर डिस्चार्ज। तो deworm अदर किया देन ना? दैट आई थिंक बाकी सारा आपका ये जो उसका वर्क है, सिर्फ एक चीज आपने मिस कर दी। तो deworm किया? डीवर्म किया इन्होंने, डीवर्म इन्होंने किया। एक चीज आपने जो मिस कर दी वो ये कि जी कि आपने डायग्नोसिस आपका आयरन डेफिशिएंसी नहीं आपने बना दिया, व्हिच इज ओके एट दिस स्टेज। सीबीसी सर मैंने उसके वो देख लिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली इसलिए मैंने सिर्फ बिफोर द प्रोसीजर व्हेन आई वाज एडमिटेड देन आई वुड रिपीट है सीबीसी, और एक मैंने ओपीडी बेस पे करवाया है। नहीं मैं सुन और ले वो बेटा। मेरे पास जब आई थी तो सीबीसी करा लिया था। नहीं हाँ वो वो मैंने ठीक आपको है। बताया। नंबर जी 1, उसको कंफर्मेशन करने के लिए आप कहोगे कि जी मैं कुछ टेस्ट करूंगी हाँ, यस डायग्नोस्टिक सर, बिफोर कंफर्मेशन। बिफोर यू गिव अ पैक्सल वॉल्यूम और बिफोर यू डीवर्म इट। आप उसकी कंफर्मेशन के लिए यू विल डू द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस, जो हमारी कौन कौन सी होती हैं। Do remaining investigation which included rectal indices, MCV, MCH, MCHC, serum ferritin, serum TIBC, serum iron, and transferrin saturation if done. हाँ, टू कंफर्म माय डायग्नोसिस वो करोगे। Confirm the done. वरना इससे पहले आप उसको ये, और इसमें ऑफ कोर्स जो चीज आपने फिर मिस कर गई वो स्टूल भी कराओगे आप उसका, टू कंफर्म फॉर योर। सर वो मैंने इन्वेस्टिगेशन में ऐसे लिखा हुआ था व्हाट आई नीड इन इन्वेस्टिगेशंस। हाँ तो इन्वेस्टिगेशन में आई नीड स्टूल डीआर बट इट वाज नॉट अवेलेबल, मतलब इट वाज नॉट डन इन माय पेशेंट, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट प्रोफिलैक्टिकली डिवॉर्म हर। नहीं वो अपनी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी इसके अगर हम केस में जा रहे होंगे तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में उसको आपने लिखना जरूर है, जिक्र जरूर करना है। यस अगर सर। आपका डायग्नोसिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पाइका ये सारा कुछ हो रहा है, तो उसमें फिर आपको मेरा ख्याल है कि इट हैज टू बी डन। और वो अगर यस हो सर। जाता है तो फिर आगे उसका जाहिर है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चंस आपको ज्यादा होंगे कि जी पैक सेल कितने लगाओगे आप? Sir, till my मैंने patient पैक become सेल asymptomatic हो जाए, for example, how would you define asymptomatic? patient is complaining of shortness of breath and she is unable to do her household activities, and she has severities increases. Initially, she has she can climb the stairs, and now she's unable to climb the stairs. So obviously, she's become symptomatic. Her नेहा classification अगर हम कहें तो sir वो increase एक तरीके से हम कहें तो होती जा रही है. Severity Okay, will increase. all right, fine. And how many do you think she will require bloods before she becomes asymptomatic? 1 or 2 pens Paxil at least. चलो हमने 1 पिंट लगा दिया। पहले एचपी कितनी थी? सर पहले इसकी एचपी 6 ग्राम पर डेसिलीटर थी, जिस पे ये मतलब और एडमिट अब ये हुई। 1 पैक से कितनी हो जाएगी अबाउट? सर 7 मतलब 1 Paxil increase 0.8 to 1 gram per deciliter, so it will Let's make it raise it up 7. to 7. अगर 7 हो जाती है और पेशेंट के सिम्टम्स 50% बेहतर हो जाते हैं, फिर क्या करें? Then I can give her parental iron, because blood Okay. transfusion has its own hazards, so it's better to give parental iron because it will also increase the stores of the iron. So I will calculate the formula according to her weight and replace iron. फिर हमने आयरन प्लेस करके then we'll send her home and then we'll ask for the symptoms and then once we'll follow up Once कितने दिनों के बाद? follow up, sir, ideally it should be repeated after 3 weeks. CBC should be repeated to see the improvement. But if you want to get the response earliest, so we can go for the retic count, which will increase in 5 to 7 days and show that the response of our treatment. ठीक। अच्छा, इसमें किसी ने ये पूछा अभी सवाल कि why not oral, why parenteral
Why do you want to give it? Sir, it shows certainly that the iron is given to my patient, and my patient is not uncompliant with the medication. And as she has history of pica, might be she has malabsorption of the iron. So it's better to give her parental to increase at this level. और थोड़ा सा बीच में इसमें compliance का ऐड कर. Sorry, sir. Compliance का ऐड कर दो बेटा. जी sir, compliance improvement will show. हाँ, इसका करके and 3 weeks के बाद दोबारा reassessment and HP दोबारा. और अगर let's suppose patient की HP 8 आ जाती है तब 3 weeks के बाद, if the patient patient बेहतर हो जाता है, फिर क्या करेंगे? जी sir, then I will switch then I will continue her oral iron with oral iron and folic acid. Okay. तो आयरन आपने बाद में ओरल क्यों नहीं दिया, सिर्फ पेरेंटल लेके क्यों छोड़ दिया आपने? तब दे सकते सर अब 8 हीमोग्लोबिन हो गया है ना, so still we have a time. So which दोनों की efficacy और same है parental और oral ना. Now the hemoglobin is 8 and patient is not symptomatic and we have a time up to the delivery, so we can raise the hemoglobin by oral as well. Okay. आपका टारगेट क्या है एचबी का लेके जाने तक before we deliver the patient? Sir, for cesarean section it should be around 10 gram per deciliter. But in this case I would say कि आप इसको 10 से plus रखोगे, reason being क्योंकि she already went to Previous to PPH scar, yes sir, previous to scar and history of Previous two PPH in sections my भी हैं, patient. Yes sir. so And we will history of try to previous keep PPH it हाँ around 10, as 11. close to probably 10.5 11 तक हो जाए तो अच्छी बात है. जी sir. with जिस तरह आपने कहा कि हम इसको ब्लड भी अरेंज करके Keep blood in hand for the cesarean section. we will also keep blood in hand at least, well, probably 2 क्योंकि इसमें हमने प्लेसेंटा उसका जिक्र नहीं Yes किया. sir, P2 pack set should be in hand. तब पैक सेल होंगे कि तब अपना होल ब्लड होगा? Sir, Paxil. Why पैक सेल? It has decreased chances of anaphylactic reaction because in Paxil we have compact RPCs, while in whole blood we have plasma, we have cryo, which can increase the susceptibility of the infection. तो क्या आप हर सर्जरीज के साथ पैक सेल रखते हैं? No sir, if the patient has acute loss of the blood in which all the components are decreased, so we will go for the whole blood, like in trauma, accidents. तो बेटा जब सर्जरी कर रहे होते हैं तब कौन सा लॉस होता है? While doing a surgery जब कर रहे होते हैं, सेक्शन स्पेशली कर रहे होते हैं, तब कौन सा ओवरऑल लॉस होता है, ओवरऑल ही होता है. तो फिर आप सिर्फ पैक सेल क्यों दे रहे हो? It will maybe the complication of overloaded of the patient. Patient may went into pulmonary edema. Also, she was anemic. The cardiac load will be increases and leads to pulmonary edema. बेटा अब तो उसकी maybe- हीमोग्लोबिन आपने 10 से ऊपर कर दी और जी. सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद सेक्शन पे लेके जा रहे हो ना? Yes sir. फिर Sir, क्यों volume आप overload ना हो जाए ना? Volume क्या ना overload हो हो जाए? जाएगा. Volume overload. अच्छा, ये जो आप अभी बात कर रहे हो ना, नॉर्मली ये रिकमेंडेड होती है जब आप यूरोप में, अमेरिका में या वहाँ के काम करते हो, जब आप कोई भी कंपोनेंट ऑफ ब्लड मंगवाते हो, वो पूछते हैं कौन सा चाहिए. Whole blood, normally they don't do that. But in our setup, in our society, जो आप बात करते हो वहाँ पे हर जगह इकोनॉमिक पैकेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती और रादर पुटिंग इट के पहले हमने उसको आरबीसीज लगाए, फिर हमने उसको एफएफटीज लगाए, फिर हमने उसको क्रायो लगाया. उससे फिर बेहतर होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी जब एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है तो देन वी गिव देम होल ब्लड प्रोवाइडेड कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर इतने सेपरेट सब चीजें कंपोनेंट्स अवेलेबल हों, कि तीनों कंपोनेंट्स अवेलेबल हो, फिर ऑफ कोर्स दिस इज द राइट वे. लेकिन जब ड्यूरिंग सर्जरी एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है तो फिर इट इज बेटर कि फिर आप उसको होल ब्लड ही लगाओ अगर अवेलेबल है. सॉरी, अगर बाकी सारी चीजें कंपोनेंट उसका ब्लड का अवेलेबल नहीं, क्योंकि उनको बनते हुए, करते हुए या तैयारी करते हुए वो करेंगे. एंड ऑफ कोर्स फिर अगर आप उसको सिर्फ एक्सेल लगाने हैं, जो भी लगाने हैं,
उसकी अपनी कॉस्ट, एक अपनी लगाव। So Fine. we'll try to keep it whole blood. अब हमारे सेटअप के हिसाब से, और अगर आप इंटरनेशनली बात करोगे तो जाहिर है कि जो कंपोनेंट आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर उसके हिसाब से आप लगाओ। Yes, sir. ठीक। और रहेगी बात वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड यस, नॉर्मली एनीमिक में ज्यादा होते हैं, अगर आपने प्रिपेयर कर लिया। तीसरा, आप एनेस्थीसिया वाले दिल कीप एन आई ऑन द क्या कहते हैं द लंग्स, और उनकी क्लैरिटी और उसके हिसाब से दिल मेक श्योर Yes, कि जी yes, ग्लूकोज ओवरलोड ना हो। लेकिन नॉर्मली जब इतना एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा हो कि आपको ब्लड की जरूरत है तो ओवरलोड के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि yes, लॉस sir. तो वैसे ही आपको उधर से हो रहा है। ठीक। बाकी आई Fine, sir. थिंक ओवरऑल इट वाज फाइन। Thank you, sir. उसमें आई थिंक इसमें जितना ये है, क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली जो इनका जो पैटर्न होना है या जो होना है उसका इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन होपफुली विद इन नेक्स्ट वीक और सो इट विल बी फाइनलाइज्ड एज सच। और फिर वो मई से पहले पहले ही उसका पैटर्न सारा कुछ वो आपको बता देंगे। लेकिन ट्राई टू कीप इट कंसाइज। अब आपने सिर्फ जो ज्यादा फोकस करना है, अगेन माय पॉइंट इज कमिंग बैक, जो आप उसके सेलियंट फीचर्स हैं या उससे रिलेटेड फीचर्स जो हैं वो उसमें ज्यादा आ जाएंगे। इसमें जो Yes. आपको एक फायदा एक है वो ये कि ये फायदा है कि जी जो फोकस वाला होगा वो आपको नॉर्मली लेफ्ट राइट पे नहीं लेके जाएगा पेशेंट, वो आपका जो भी आगे बैठा हुआ है वो आपको उसमें लेके जाएगा। इसमें जो नेगेटिव बात एक आ जाएगी सबसे बड़ी, पहले जब भी हिस्ट्री लेने जाते थे या जो पेशेंट्स आते थे वो आपके अपने हॉस्पिटल से उसी तरह के आते थे। अब यहाँ पे कोई भी बंदा किसी को भी किसी किस्म की डिजीज के साथ भी बिठा सकते हैं, जो मे बी इवन रेयर और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन ना हो। Same. अगर वो आ जाएगा और ऐसे केसेस जो मे बी इमरजेंसी के अंदर या एक्यूट मैनेजमेंट के लिए जरूरत है, वो वाला केस भी शॉर्ट केस करके बना के आ सकता है, क्योंकि उसने तो बैठ के हिस्ट्री देनी कि हाँ जी मुझे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बताए मैं क्या करूँ। ये भी हो सकता सर, है तो कि इसमें तो हम ट्राइमेस्टर वाइज ओमिट कर देंगे हिस्ट्री। वी जस्ट नो आस्क द आई विल कंसर्न नॉट आई डोंट थिंक सो कि जब आप एक्यूट इमरजेंसी है उसके हिसाब से तो फिर जाहिर है वो मिस हो जाती है, पर नॉर्मली फिर अगर वैसे होगा तो आप उसको फिर आप इस तरह से तो कि हाँ जी आपको कोई पहले 3 महीनों में इशू हुआ, सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आपको पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये सर आपकी आई हिस्ट्री हैव अटेंड टेक्निक जो है ना वन उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर आई हैव अटेंड वन वर्कशॉप एट JPMC कराची, और इसमें भी हाँ वही प्रैक्टिस करवाई थी जिस तरह आपने अभी करवाई ना, बिकॉज शॉर्ट समरी वाज गिवन विद इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हीमोग्लोबिन दिया हुआ था और आगे पूछा फर्दर क्वेश्चनिंग हुई थी उसी स्टेशन पे, व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल आस्क, जैसे आपने पूछा ना कि आप और क्या क्या करवाएंगी, तो बस वही रेलेवेंट में जो फेरेटिन चाहिए, दूसरे आरएम लेवल मार्कर चाहिए, तो इस तरह की क्वेश्चनिंग हुई थी और यही मैनेजमेंट थी। एग्जामिनेशन ये कि वो फिर प्रैक्टिकली हो जाता है कि पेशेंट इज सिटिंग ऑन द काउच एंड यू हैव टू एग्जामिन दिस पेशेंट एंड पेशेंट इज एनीमिक, तो अनीमिया से रिलेटेड फिर एग्जामिनेशन वही जर्नल फिजिक एग्जामिनेशन, JVP, और फिर आपने रेस्पिरेटरी और कार्डियक एग्जामिनेशन कर ली और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ऑप्स एग्जामिनेशन कर ली। एंड उसमें तो यही रेडियो फेमोरल डिले ये सारी चीजें जी भी फिर रेडियो आपकी फेमोरल जी, हाँ वो भी सारी लेकिन फिर आपको दी उसमें जाएगी। JVP पे कुछ वैसे भी कंसल्टेंट कुछ कहते हैं कि एनीमिया में चेक करो, नहीं करो, फिर ये फिर हो जाता है। मेरा बेटा इट्स नॉट अबाउट एनीमिया, लेकिन एनीबॉडी कमिंग विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसमें जेवीपी आपका चेक करना जरूरी हो जाता है, वरना उसमें कार्डियक इवैल्यूएशन फिर आ जाएगी बीच में। यस सर। इट इज एनीमिया अपनी जगह है, लेकिन वंस पेशेंट कम्स विद सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसमें आप जरूर करोगे, उसमें आप अपना उसका कार्डियक की इवैल्यूएशन भी चारों पे, इसमें कोई मर्मर तो नहीं कुछ और तो नहीं, वो आप जरूर करोगे। यस सर। हाँ तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से जो हमारी जो एक चीज हमने फोकस करके एनीमिया में तो ले गए, लेकिन आई थिंक इसमें कार्डियक इवैल्यूएशन भी उसकी साथ एक हो जानी चाहिए। उसकी अगर हाँ अगर उसके लंग्स क्लियर आते हैं और उसकी लेट्स सपोज हार्ट में कोई ऐसा इशू नहीं है, जो भी नॉर्मल है, ऑफ कोर्स देन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नी। सही यार सही,
ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग एल्स इसमें कुछ पूछना चाहो? Excuse me, sir. sir. Excuse me, sir. I have a question regarding this case. आपने after listening history, you directly asked about the management, but we would be provided investigations तो होनी चाहिए ना, पहले होंगी तो फिर then we will manage the case ना. बेटा वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेशन किस चीज का है। अगर उस स्टेशन पे दोनों चीजें ही हो सकती हैं। एक स्टेशन के अंदर हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन आपसे मांग लें सिर्फ, हो सकता है उसी स्टेशन के अंदर वो उसकी आपको इन्वेस्टिगेशन देख के एग्जामिनेशन करा लें। तीसरा हो सकता है कि वो आपको इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन बता के आगे मैनेजमेंट करा लें। तो इट कुड बी एनीथिंग, वो डिपेंडिंग अपॉन के अपने एग्जामिनर्स ने क्या लेना उसमें से स्टेशन कैसा बना हो। पर जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, या आपने रिट्रीव करनी होगी या आपको ऑलरेडी उस पे शॉर्ट हिस्ट्री पे दी गई होगी। Sir, अगर यही same case हो and the patient would be of age 42 years, so what would be the choice of contraception for her? 42 पैरा 3 सेक्शन करने जा रहे हैं। Previous 2 हो, anemic हो, यही हो, सिर्फ age हो 42 years. So what would be the choice of contraception for her? मैं तो previous to 42 years of age, इसकी अगर फैमिली कंप्लीट है तो फिर तो मैं तो आई वुड स्टार्ट विद अपना लाइगेशन। अगर ना कराए तो? अगर ना कराए तो फिर आईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी। अगर वो भी नहीं करा रही तो फिर थर्ड वुड बी प्रोजेस्टेरॉन ओनली, जो आपके हैं इंजेक्टेबल्स। ओसीपीज इज नॉट द फर्स्ट चॉइस, इट विल कम डाउन। फिर मे बी आप उसको अगर अवेलेबल हैं तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी दी जा सकती हैं 42। एक्सक्यूज मी सर, सीपीएसपी ने जो वर्कशॉप करानी थी एग्जामिनर्स की, वो कब तक प्लान्ड है? कुछ आइडिया है आपको? बेटा अभी तक तो पता नहीं, क्योंकि अभी तक पहले इनकी एक होनी है मीटिंग, जो ये हमारी गायनी की कमेटी है वहाँ पे, उन्होंने पहले डिसाइड करके इसको फाइनलाइज करना, फिर देन दिल बुला के फिर प्रॉब्ली वो कराएंगे या इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर के लिए तो थोड़ा सा बेटा आसान इस चक्कर में है, क्योंकि उनको तो वो रिटर्न आ जाएगा ना उसका आंसर कि ये जवाब दिया है, तो जिस तरह टॉक्स पे होता है, इसका एक नंबर लग जाएगा, इसके 2 नंबर लग जाएंगे, ये नहीं दिया तो इसका नंबर कट जाएगा, उसे कंप्लीट करने का पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ख्याल है कि इसमें एग्जामिनर्स की वर्कशॉप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो उसको आपके टॉक्स के स्टेशंस को रीडिजाइन या उसको बनाने में लगेगा टाइम, ज़्यादा टाइम उसमें लगना है वैसे, रीडिजाइनिंग एंड रीमेकिंग ऑफ द टॉक स्टेशंस। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। ये हमारी पेशेंट अगर ये हमारे पास अनबुक्ड है और हीमोग्लोबिन 7 के साथ आती है और लेबर में है, तो उस वक्त हम इनको होल ब्लड देंगे या हम इसको पैक सेल देंगे? और ये भी एक क्वेश्चन और भी है कि हम इको किन पेशेंट का कराएंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट, अगर हम फीटल सर्विलेंस या करेक्शन ऑफ एनीमिया के लिए पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, तो किन सूरत में जो है हमें इको कराना है? और लेसिक्स हमें कितने ब्लड के बाद देना है ऐसे पेशेंट्स को? ये 3 क्वेश्चन है मेरे। आखिरी सवाल क्या पूछा आपने? लेसिक्स इंजेक्शन, लेसिक्स हम लोग ब्लड की इन बिटवीन लगाते हैं 2 ब्लड देने के बाद, तो हमें वैसे रूटीन किस तरह लगानी चाहिए कि पल्मोनरी एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए या फ्लूइड ओवरलोड होने के लिए जो हम लगाते हैं, तो किस इंटरवल में देना चाहिए? बेटा जो आपने जो पहला सवाल, ये सॉरी लास्ट वाला सवाल जो पूछा है कि पल्मोनरी एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए आपने लेसिक्स कब लगाना है? नंबर 1, लेसिक्स कितने ब्लड के बाद? कितने ब्लड के? देखो लेसिक्स आप लगा रहे हो उसका फ्लूइड ओवरलोड लेने के लिए, नॉर्मली ब्लड के साथ लगता है, लेकिन आजकल के हालात के अंदर जहाँ पे पैक सेल ब्लड पैक सेल ब्लड अवेलेबल है, उसके साथ लेसिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेसिक्स तब लगाते हैं जब आपके पास पैक सेल ना लगाओ, या नंबर 2 अब बल्कि तब तो मानी कहते थे कि आप ब्लड को हैंग कर दो, ऊपर वाला जो उसका प्लाज्मा रह जाता है उसको रहने दो, बाकी को आप लगा दो, और साथ साथ आप उसकी चेस्ट सुनते रहो। चेस्ट में अगर आपको लगे कि क्रैम्प्स आने शुरू हो गए हैं, तो फिर दैट इज द टाइम जहाँ पे उसको आप लेसिक्स लगाओगे। लेसिक्स ओरिजिनली या वैसे रिकमेंडेड वैसे नहीं है कि आपने हर मरीज को तब लगाना है,
और बिटवीन 2 ब्लड्स के लेसेस कब लगाना है वो भी, अगर उसको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं ओवरलोड के तब आप लगाओगे। वैसे इस तरह रिकमेंडेड नहीं कि आपने ब्लड लगाना है तो उससे पहले आप लेसेस लगा दो उसको। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये किसी फिजिशियन वुड लेट यू नो मच बेटर। लेकिन जहाँ तक है कि जहाँ तक पैक सेल्स लग रहे हैं पेशेंट्स को, चेस्ट उसकी क्लियर है, उसको लेसेस की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा उसको अपना क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल दैट, कि होल ब्लड ही लगा रहे हैं और उसको चेस्ट में चेंजेस आ रही हैं, तब ये सब कुछ यू कैन डू दैट। इमरजेंसी सिचुएशन में सर हमें पैक्सिल पे ही प्रेफर करेंगे, लेबर में पेशेंट आ रही है अनबुक्ड है, बेटा लो अगर हिस्ट्री के लेबर साथ में है और आप उसका सेक्शन करने लगे हो, तब आपके पास इतना टाइम ही जी नहीं होगा कि आप उसके पैक सेल्स बना के या बने हुए पड़े हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप होल ब्लड लगाओ। तब होल ठीक ब्लड है लगाना क्या जस्टिफिकेशन ये आपकी हो जाएगी, नंबर 1 एक तो अवेलेबिलिटी, और नंबर 2 जब जाहिर है उसका आप सेक्शन करेंगे तो उसका ब्लड लॉस तो हो रहा है, तो उसको करने जी के जी लिए बाकी कंपोनेंट्स को भी इसके साथ साथ फ्रेश ब्लड आप लगा दें तो बेहतर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो जी, मेरा ख्याल है डॉक्टर शनाज की क्लास है आज। यस सर। हाँ मेरे ख्याल 10 o'clock हो गए हैं, अब उनकी आने वाली बारी होगी, विल सी। और थोड़ा सा आप लोग इसकी हमें सजेशन भी दो कि हम इसको और किस तरह बेहतर कर सकें। एक तो मुझे ये बात समझ आती है कि हम 2 कैंडिडेट्स को बीच में लें, एक रोल प्लेयर बनेगा और एक उसकी हिस्ट्री ले ले और एक उसको सर अपना, ये सही है, क्योंकि मेरा ख्याल है ये तो हम हिस्ट्री लेकर आते हैं ना, हमें सिर्फ अगर टॉपिक दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल किसी को कहें कि डायबिटीज पे टॉपिक इज गोइंग टू बी डिस्कस इज डायबिटीज ना, या गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस, और फिर जो है एक वाकई में हिस्ट्री लेकर आए और एक जो है रोल प्लेयर बन जाए, वो अकॉर्डिंग टू दैट हिस्ट्री दे किसी और को और बेटा फिर जो हिस्ट्री बनाए। लेके आएगा ना वो उसको रोल प्लेयर बनना पड़ेगा। जी सर, जी सर, क्योंकि क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम अदर्स, तो हाँ, रिप्लाई वो करेगा जो हिस्ट्री लेकर आएगा, फिर topic उसके we अकॉर्डिंग can decide upon the topic and then one of यस सर। the candidates will take a history और उसी के salient features को वो उसको जवाब देगा on the जो और दूसरा सर वाला टाइम हमारा लिमिटेशन भी होनी चाहिए, 10 मिनट्स के अंदर बस हिस्ट्री तो बस हिस्ट्री, तो स्टॉप कर दो उसके बाद कैंडिडेट को के मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस होगी 10 नहीं, मिनट्स ये की। अभी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक हम में से कोई प्रिपेयर्ड नहीं है इसलिए, लेकिन फाइनली हमें यस इसे सर, करना पड़ेगा। ये we सिर्फ kind एक of do सिनेरियो that। होगी, और अगर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो फिर कोई दूसरा कैंडिडेट आके वो कोई समरी दे दे या इन्वेस्टिगेशन या वाइवा। और इसी में we'll try to do 3 cases, यस सर, चाहे यस तीनों सर। डायबिटीज के हों। जी जी, एक गेस्टेशन डायबिटीज बन जाए, एक एस्टैब्लिश बन जाए, एक टाइप 1 बन जाए, तो वो ये जो भी 3 हो करना चाहे, जाएंगे तीनों डायबिटीज के हैं या जी तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, जी लेकिन उसका हम करके ये मेरा ख्याल है, और इसमें फिर आपके एटलीस्ट 6 कैंडिडेट्स जो होंगे वो दे गो थ्रू द सर्कल। सब वैरायटी आ जाएगी फिर। चलो ये विल भी हो सी एंड सकता है कि देन नेक्स्ट टाइम केसेस मैं बना दीजिए। इसको रुबा कहता हूँ थोड़ा सा इसको रीनेच करके फिर हम देखते हैं कि आगे कैसे जाए। यस सर, थैंक यू सर। सर अगर आप जो है ना रोल प्लेयर बन जाएं और आपसे अगर कैंडिडेट क्वेश्चंस कर ले, आई थिंक इट इज बेटर कि अगर एग्जामिनर रोल प्लेयर हो वो आंसर करे, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत कैंडिडेट क्वेश्चंस करे और रोल प्लेयर के तौर पे एग्जामिनर खुद मतलब उसको मतलब एग्जामिनर से क्वेश्चंस करे। आई थिंक ये बेटर रहेगा। तो आप चाहते हो कि मैं 3 हिस्ट्रियां लेके फिर आऊं? नहीं तो सर नोट कैसे नहीं करेंगे, नहीं तो नोट करेंगे ना हमें सर, तो हमें नोट करेंगे ना, एक हिस्ट्री ले जैसे वहां पे भी नोट वो कर सर बैठा है। सर आप बेहतर सिनेरियो भी दे सकते हैं कि आपको ज्यादा जाहिर है आप प्रोफेसर तो आप ज्यादा बेहतर हमें मतलब केस दे सकते हैं ना, इस तरह से जज भी सही तरीके से कर सकते हैं। चलो वन ऑफ द केसेस देखो कैंडिडेट बेटा, खुद बनेगा ना मैं रोल भले प्लेयर, तो उसे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसे खुद पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, विच क्वेश्चन इज मिसिंग। तो मेरे ख्याल से ये हमें याद रहेगा कि अच्छा इसने मुझसे ये सवाल नहीं किया, इसे ये पूछना चाहिए था, तो ये भी होगा अगर कैंडिडेट खुद रोल प्लेयर बने। तो आप सिर्फ हमारी चलो गलतियां निकालें, 10 मिनट्स नोट करें और हमें और फास्ट अप और स्पीड अप और फोकस रखते हैं। चलो नहीं, इसमें हम ये कर सकते हैं बेटा, एक आधा चलो जो है वो एग्जामिनर भी रोल प्लेयर बन सकता है, क्योंकि we'll have 3 केसेस, उसमें एक केस के लिए एग्जामिनर भी बन सकता है अगर जरूरत पड़े, अदरवाइज
जो कैंडिडेट्स और 2 कैंडिडेट्स करा के उसमें भी करा लेंगे. We'll see by next weeks. मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा इसको और रुबा के साथ मिलके इसको फाइनलाइज कर दूँ. ओके, थैंक यू सर. और सर बस आखिर में हमें ये बता दें कि कोई पेट क्वेश्चन कंसल्टेंट के क्या होते हैं, या हमें किस पे मतलब क्योंकि हमें कहा गया कि कुछ स्टेशंस ऐसे आएंगे कि आपसे मैनेजमेंट पूछने के बाद कुछ थ्योरेटिकली 1-2 क्वेश्चंस अनयूजुअल से पूछ सकते हैं. जैसे रीसेंट एडवांसेस तो वैसे ही पूछते हैं ये लोग, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही होंगे जो ये आपकी काइंड ऑफ थ्योरी में से होंगे, तो बाहर से तो नहीं उसने लेके आना. ओके सर. थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही बेसिकली रीसेंट एडवांसेस, कोई गाइडलाइंस की कोई नहीं आ जाती है उसके बारे में कुछ इस किस्म की चार्ज, वो प्रॉब्ली दे विल डू दैट. हमारे Okay, लिए तो sir. बहुत आसानी होगी, हमें तो लिखे लिखा सवाल मिलेंगे, हमने वही पूछने. वी कैन नॉट गो Sir. टू लेफ्ट और राइट ऑफ दिस. ओके सर. तो इसलिए लेकिन ये है कि ये मेरा ख्याल है आप लोगों को पास करने के लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह. होपफुली सर. होपफुली. थैंक यू सर.